how we need to prepare ourselves for the upcoming board exams. ये है हमारा new revised pattern for 2021 for psychology paper according to CBSE 12th standard guidelines. Psychology is not very tough. It is very much understandable if we have the correct medium to understand. Relax, take a deep breath, and prepare yourself accordingly and how much time you need to divide over the chapters. Hey guys, I'm Jigyasa Tandon, a counseling psychologist and a mental health educationist from NIMHANS, Bangalore, and a psychology teacher in one of the leading schools in Delhi. And I'm here to help you out in the times of uncertainty with your subject of psychology. So, this year has been a little difficult and, a little panicky with online classes shifting and, not clearing of whole subject. So, I'm here to help you out with the whole subject. And the happy news is that we have reduction in our syllabus for this year, that is 30% of the syllabus has been reduced. So we are lucky on that part. So let us see how to solve the paper, how to go by the paper, and how to understand what to do when and how to prepare ourselves for our psychology paper. So let's get into the video. So today the agenda of the video is to understand the new CBSE revised syllabus sample paper which has been released on the CBSE side for class 12 psychology. Here is the sample paper division of all the questions. You can take a screenshot of this as well, and we'll discuss it one by one with each questions and how to prepare for your syllabus. So before starting discussing your revised question paper based on the new syllabus, that is 33% less of the original syllabus that is designated for 12th standard for class 12th CBSE psychology, I want to tell you that before starting your preparation or start opening your book after your pre-boards, the important thing is to take a breather. Please understand that psychology is not at all a very tough subject if understood in a very proper manner. It is very easy to link human emotions, situations, given examples with the content, and you will be easily able to remember things. We need to just associate the technique of associating learning with common situations, which will make us remember things for a longer period of time. Before I start into all these chapters and everything, it is very important to also understand what is being expected out of us, what is the CBSE board demanding out of us, and how we need to prepare ourselves for the upcoming board exams, right? So you have a breather also this year that board exams are not in February and March as scheduled every year. It is from 4th May to June 10th, and your results will be out on July 15th. So we have a breather here, and you have a very good quantity time period to prepare for your board exams accordingly. So we will take this journey very nicely and upbeat manner, right? So we need to understand that our first to 14th question is out of 1 markers objective type. Now in this, if you will look at question number 10 for example, you have some case-based examples also. So it is very important not just to learn the definition of the common terms that are given, the identifiable black bolded terms, but also to see the implication with examples, like how can this particular thing happen in your life, and or the situation, to understand the questions, right? So internal choices will be given. I think around 30% of internal choices are there in the board exam paper, on the sample paper also presented. So first to 14th question are 1 marker questions, and they're objective type purely, and so we need to ensure that these 14 marks are in our hand so that we can score the bare minimum of 14 marks. Then question 15 and 16 are unique this time.
because they are both case based questions. One is question number 15 is of 3 marks, whereas question 16 is of 14 marks, and question 3, this 3 marks involves one marker question each. So this 3 marks is not a whole 3 marker question, rather this 3 marks is divided into 1 marker question each. Then we have 4 mark question for question number 16, which is a case based objective type question. So here the questions will be 4 marks, right? So 4 1 markers we have for question number 16, making to total of 7 marks here. So here usually what is given in the sample paper, usually the question might be dominated from the chapter of stress and disorder, because if you will see, the proposed mark distribution has been increased in in subsequent chapters. So so these marks have been adjusted into this case based questions here. So you need to be very pakka with your hold of stress, attitude disorders chapter. That is chapter number 4, 3 and 8, right? Then we come to 2 marker questions. Again, if you will see the sample paper, it is dominated by stress question. A lot of stress chapter related questions have been included in the chapter, in the question paper. So we need to very much focus on the chapter third as well as, and not take it very easy breezy as we have been taking, as the past classes have been taking the chapter, because the mark proportion has been increased. So from question number 17 to 22, we see we have 6 questions for 2 markers, and that makes up to 12 marks, and the required quantity here is of 30 words only. Here I would suggest, for all the word distribution that is given here, I would suggest that you prepare plus 10 or 20 words here. That means if you are preparing for 30 words for 2 marker question, you should prepare for 10 and 20 words extra accordingly, because you remember in your 11th standard you have learned about forgetting. So we have high chances of forgetting, so that if you forget up and down, so प्लस माइनस होकर आपका बैलेंस हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली अगर आप घूम फिर के लगाओगे तो 30 वर्ड्स तो हो ही जाएंगे, ऊपर नीचे कुछ थोड़ा बहुत होगा तो मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 टू 25, वो है 3 मार्कर्स क्वेश्चन एंड डिमांड है 60 वर्ड्स की, ठीक है। और अगेन यहाँ पे 10-20 वर्ड्स ऊपर नीचे लर्न करने का है हमारे को, एंड इसका टोटल हमारे 9 मार्क्स बनते हैं 3 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। फिर अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 29, वो है 4 मार्कर्स क्वेश्चन, ठीक है, और हमारे को डिमांड है 100 वर्ड्स की। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 60 वर्ड्स नहीं किए, तो यहाँ पे अब अराउंड 80 वर्ड्स प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। 20 प्लस कर लेंगे, यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे 20, तो 120 वर्ड्स के अराउंड हो जाएंगे, ठीक है। और 4 क्वेश्चंस है हमारे 26, 27, 28, 29 4 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 जो है वो 6 मार्कर्स क्वेश्चन है, और वो 200 वर्ड्स का प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे भी आप 20 प्लस वर्ड्स लेके ही चलेंगे, एंड 2 क्वेश्चन है जो 12 मार्क्स हमारा कंपोजिट करती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास हाई चांसेस है अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के लिए 14 मार्कर्स, देन दीज 7 मार्कर्स, देन दीज 12 markers, 12 marks for 2 markers, and these 12 marks for 2 6 markers, जो आपके पक्का इंश्योर है ही, जो हमारे आने ही आने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आ सकते हैं। बट ये मार्क्स आपके हाथ में है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये आपके हाथ में, तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अराउंड ही घूमता है। तो हम आपको करेंगे कि कैसे। और इस पूरे
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके लगेंगे 3 hours. So you have ample amount of time to read the question, to spend time on the question and understand the question, and then attempt the question. So you have good amount of time plus 15 minutes आपको रीडिंग के मिलेंगे, तो आपको आराम से अंडरस्टैंड करने की चांसेस है और अच्छे स्कोर करने के चांसेस, यानी कि 70 में से 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने के अच्छे खासे चांसेस है. तो ये है हमारा न्यू रिवाइज पैटर्न फॉर 2021 फॉर साइकोलॉजी पेपर according to CBSE 12th standard guidelines, and this is the mark distribution, and this is how we need to prepare, and we have 30% of internal choices for these, right? So this is something very very important. Also I'm leaving some time so you can take a screenshot of the same, and you can keep this as a valuable information for your future references. अब हम सेक्शन 2 ऑफ दिस वीडियो को अंडरस्टैंड करते हैं, जहाँ पे हम लोग रिवाइज पैटर्न के साथ साथ वो चीज़ें देख रहे हैं जो चीज़ कट कर दी गई है हमारे सिलेबस से, और कहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो नया आया है वो कहाँ पे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और हमारे प्रैक्टिकल की क्या स्टेटस रहेगी. तो अगर आप देखोगे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो है वो कंप्लीट चैप्टर्स आ रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है कंटेनिंग या इन रिस्पेक्ट टू द चैप्टर डिलीशन और एनी पोर्शन डिलीशन. सबसे पहले जो पोर्शन डिलीशन हम देख रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी जो साइकोडायनेमिक थेरेपी के नाम से जानी जाती है, जो फ्रॉइड भाई साहब ने दी थी, वो कैंसिल हो गई है, वो नहीं आ रही है. एंड इट इज़ अ बिग रिलीफ बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग थेरेपी, तो वो आपके लिए नहीं आ रही है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चैप्टर के इनिशियल पोर्शन में देखोगे जहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आपको कौन सी थेरेपी चूज करनी चाहिए, कैसे थेरेपी चूज करनी चाहिए, तो वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन है कि अगर किसी को अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज हो रहे हैं या चाइल्डहुड इश्यूज हो रहे हैं, तो हम उन इंडिविजुअल्स को, हम उन क्लाइंट्स को हम उनको साइकोडायनेमिक थेरेपी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि साइकोडायनेमिक थेरेपी का बेसिस ही यही है, जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से अराइजिंग इश्यूज जो आ रहे हैं, तो वो चीज़ साइकोडायनेमिक थेरेपी में काउंट हो रही है, जो इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर में मेंशन है. तो आपको ये बात का अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड चीज़ जो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 की बायोमेडिकल थेरेपी भी नहीं आ रही है, तो ECT यानी कि ये सब टर्म्स आपको नहीं लर्न करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ नहीं आ रही है. देन चैप्टर नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एटीट्यूड पोर्शन आ रहा है और सोशल कॉग्निशन नहीं है. उसमें सोशल कॉग्निशन में आपका एट्रीब्यूट्स, इंप्रेशन फॉर्मेशन सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सिर्फ आपको एटीट्यूड पोर्शन करना है इस चैप्टर से. बट अगेन जैसे चैप्टर नंबर 5 में हमने इनिशियल पोर्शन में देखा, तो इंट्रोडक्शन में भी आपकी ये टर्म्स इंप्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूट्स, ये टर्म्स मेंशन है, सोशल कॉग्निशन ये टर्म्स मेंशन है. तो आपको हल्का सा आइडिया होना इस बात का थोड़ा ज़रूरी होगा कि आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले. वो हम क्विकली करेंगे, जब हम वो चैप्टर्स करेंगे तो हम वो उस चीज़ को क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होना आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगेन चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ ग्रुप्स का पार्ट आ रहा है, यानी कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप की फॉर्मेशन क्या होती है, क्यों लोग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो ग्रुप्स को बनने में हेल्प करते हैं, क्या ग्रुप से फैसिलिटेशन होती है, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि रोल, स्टेटस, कोहेसिवनेस, नॉर्म्स जो होते हैं. देन ग्रुप्स की फॉर्मेशन, टकमैन का स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा. देन आपकी सोशल लोफिंग एंड सोशल फैसिलिटेशन एंड ग्रुप पोलराइजेशन, ये सारा आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो ग्रुप में इंक्लूड होंगे. एंड चैप्टर 8 and 9
बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें वैसे भी ज़्यादा रीडिंग मटेरियल नहीं है। इट इज़ जस्ट एडेड प्रेशर जो इस बार का ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इट इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल चैप्टर, ठीक है। अगेन आप देखोगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देख रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 पहले 9 मार्क्स का था, बट उसमें 3 मार्क्स जो चैप्टर नंबर 8 और 9 एग्जिस्टिंग पैटर्न में जो यूजुअली पैटर्न फॉलो होता है वो 6 मार्क्स है ईच चैप्टर के, जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स में डिवाइड हो गए हैं 3 मार्क्स से। तो मतलब जो चैप्टर 1 to 4 चैप्टर्स है उसमें एक्स्ट्रा 3 मार्क्स ऐड हो गए हैं उनके एग्जिस्टिंग मार्क्स में, ठीक है। तो अब जो चैप्टर नंबर 1 है वो 9+3 यानी कि 12 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 2 10+3 13 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो 7+3 10 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 4 10+3 13 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो 7 मार्क्स का है पहले की तरह। चैप्टर नंबर 6 भी 8 मार्क्स का है पहले की तरह। तो चैप्टर नंबर 7 भी पहले की तरह 7 मार्क्स का है। तो फोकस एरिया अगेन जो हो जाता है वो इन 4 चैप्टर्स के ऊपर आ जाता है कि ये 4 चैप्टर्स आपने कितने अच्छे से किए हुए हैं और कितने डेप्थ में किए हुए हैं, क्योंकि इसमें से लार्ज पोर्शन ऑफ केस बेस्ड एग्जांपल्स एंड मेजर चंक क्वेश्चंस जो है 6 मार्कर्स बनने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। कमिंग टू के योर प्रैक्टिकल साइड ऑफ साइकोलॉजी, तो आपकी केस प्रोफाइल जो है वो कैंसिल कर दी गई है। तो आपको ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। एंड प्रैक्टिकल्स में से भी 3 प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5 + 1 विच इज सिंपली इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए क्योंकि आपने ये 11th में पढ़ा है सेकेंड चैप्टर साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। एंड आपके 5 मार्क्स है वाइवा के, जिससे ये पूरा जो है वो 30 मार्क्स का ही रहेगा और मेन पेपर 70 मार्क्स का रहेगा। आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपके 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जहां पे आपकी फाइल, आपकी वाइवा, आपका कंडक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट एट द टाइम वो देखा जाएगा। उसकी क्या मेथोडोलॉजी है वो अभी डीओई से आनी रहती है, क्योंकि हमने सिर्फ अब तक प्रैक्टिकल्स लिखे हैं बट अंडरस्टैंड नहीं किए, हमने कंडक्ट नहीं किए। और वाइवा के लिए क्या जरूरी है वो भी हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो आज का मेजर चंक जो है वो यही है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और कहाँ पे हमारा फोकस एरिया है जो बढ़ रहा है, वो है 1st to 4th चैप्टर का। एंड 5, 6, 7 चैप्टर्स जो है वो हमारे लाइटर चैप्टर्स रहेंगे और उनको याद करना रिलेटिवली इजी भी है, तो आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्योंकि ये सब क्लियर हो गया है, आप अपनी लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी, आप अपना शेड्यूल बेटर प्लान कर सकते हैं, बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेयर टू पुट मोर फोकस ऑन, वेयर कैन द क्वेश्चंस कम फ्रॉम largely, and this will give you a lot of benefit, right? आज का वीडियो हम यही खत्म करेंगे एंड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साइकोलॉजी को थम्स अप करिए। डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू।